ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے. ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور جان رہے ہیں کہ یہ گزشتہ چند روز میں سوشل میڈیا پہ ایک بھوچال آیا ہوا ہے اور آنا بھی چاہیے تھا. وہ یہ کہ حافظ طارق مسعود صاحب کراچی والے جو کہ آج کل کینیڈا والے بھی بنے ہوئے، انہوں نے ایک بہت بڑا جرم، ایک جرم نے 4 جرم انہوں نے ایک ہی اپنے بیان میں کر دیے، جس میں انہوں نے کہا، میں چلو دہرا دیتا ہوں، ویسے آپ نے ابھی سنا بھی ہے، ہم نے آپ کو بھی دکھایا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک میں گرامر کی غلطیاں ہیں اور نبی پاک چونکہ امی تھے، ان پڑھ تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا. جب کاتبین وحی صحابہ کرام غلط لکھتے رہے تو چونکہ وہ ان پڑھ تھے انہیں پتہ نہیں چلا، اور پھر اللہ نے بھی اس لفظ کی اصلاح نہیں کی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی توہین ہے، رسول پاک کی توہین ہے، کاتبین وحی صحابہ کرام جو لکھنے والے تھے ان کی توہین ہے، اور قرآن کی توہین ہے کہ موصوف نے قرآن میں غلطیاں تلاش کرنی شروع کی. اور یہ لوگ آج شور شرابہ کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ آج نہیں ہوا، ہر دور میں ایسے لوگ جو ہیں وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی نازیبہ حرکات اور اس قسم کے جرم کرتے رہے. یہ چند سال پہلے یہ ہندوستان میں بھی کسی نے یہ شرارت کی تھی اور اس نے بھی کوئی کہا کہ جی 25-26 جگہ سے غلطی ہے یا کچھ آیتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کو بھی لعنت ملی تھی. اور میں آپ کو عرض کروں کہ 11ویں مولا امام حسن عسکری شہنشاہ علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی جو ان کی امامت کا دور تھا اس میں بھی اسحاق کندی کوئی شخص تھا جس نے تناقض القرآن کے عنوان پر ایک کتاب مرتب کرنا شروع کی، جس میں اس نے معاذ اللہ قرآن پاک میں سے کچھ غلطیاں جو ہیں وہ کمپیل کر کے تو ایک کتاب بنا رہا تھا. تو پھر اس پر اب وہ واقعہ پورا بیان کرنا کہ مولا نے پھر کسی اپنے مرید کو، کسی محب کو بھیجا اور وہاں جا کے پھر اس تک وہ بات پہنچائی. وہ بات آج میری بیان کا عنوان ہے جو میرے امام نے جو اسحاق کندی تک اب نہ ہدایت ایک جملے میں پہنچائی تھی اور آپ کے محب نے شاگرد بن گیا اسحاق کندی کا. میں نے عرض کیا کہ اس پر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، وہ پورا واقعہ نہیں. تو
उस शख्स ने पूछा कि ये क्या आप लिख रहे हैं? तो उसने कहा मैं किताब लिख रहा हूँ। तो उसने पूछा किस लिए? उसने कहा जी तनाक़ुज़ुल कुरान, कुरान पाक में कहाँ कहाँ मुआज़ल्ला मुआज़ल्ला मुआज़ल्ला, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशुद, कहाँ कहाँ गलती है। तो फिर ये कहा इसहाक़ कंदी ने, उसने कहा कि ये बताएं कि क्या अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ का एक ही मानी होता है, एक ही मफ़हूम होता है? उसने कहा नहीं, बहुत से मानी होते हैं। तो फिर ये इमाम का पैगाम था जो उस तक पहुंच रहा था। फिर इसहाक़ कंदी से कहने वाले ने फिर कहा, इमाम के बताए हुए जुमले के मुताबिक, इमाम की बताई हुई हिदायत के मुताबिक कहा कि ये बता कि जिन लफ्ज़ों पर तू समझते हैं इनका ये मानी है और ये गलत है, हो सकता है अल्लाह की निगाह में वहाँ मानी कोई और हो। तो उसने कहा हो इस लिहाज से तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो उसने फौरन उस किताब को आग में डाल दिया, जला दिया कि अल्लाह कभी गलत नहीं हो सकता, मैं ही गलत था। यही मैं कहूँगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप माफिया तो मांगते फिर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी यहाँ ये होना चाहिए था लेकिन ये नहीं है, ये है, और ये लिखने वाले जो थे उन्होंने गलत लिखा और नबी पाक को पता नहीं चला। अब ये कुरान पाक में जो आपने एग्जाम्पल दी है, जो आपने एग्जाम्पल दी है ला नस्फ़ा अम बिन नासिया, अब ये अगर हमजा यानी अलिफ के ऊपर दो ज़बर है, अगर हमजा यानी अलिफ ना भी हो और नून भी हो, आवाज फिर भी मीम की निकलनी है क्योंकि आगे बा है। ला नस्फ़ अम बिन नासिया, और अगर अकेला भी पढ़ा जाए तो आवाज नून की निकलती है, तनवीन है, दो ज़बरों की वजह से तनवीन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप बेहतर ग्रामर जानते हैं, या जो अरब के मंझे हुए, यानी माज़ल्ला नबी पाक ने किसी जाहिल को नहीं कहा कि ये आयत आई है तो अभी लिख दे। ये जब सरकारे दो आलम जिस दौर में आप की रिसालत अनाउंस होती है, आप जलवा फिगर होते हैं, ये दौर अरबों में इल्म, दानिश, अदब, सुखन, शायरी, खिताबत की अरूज का जमाना था कि आप यहां से अंदाजा लगा लें कि वो खुद को अरब कहते थे, बाकी सारी दुनिया को अजम कहते थे। अरब यानी बोलने वाला, अजम यानी गूंगा। तो जो सारे जमाने को गूंगा समझते थे कि इन्हें बोलना ही नहीं आता, जो अदब के माहिर थे, जो शायरी के माहिर थे, जो सुखन के माहिर थे, जो खिताबत के माहिर थे, उस दौर में अल्लाह ने आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली कौनो मकान सरकार जूदो सखा, वो शहनशाह जिसकी हदीस है कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। पता नहीं उम्मी का मानी आप क्या समझते हैं? उम्मी का मानी बस इतना है कि मेरा नबी कायनात में किसी बशर का शागिर्द नहीं है, किसी बशर से तालीम हासिल नहीं की, किसी जिन से तालीम हासिल नहीं की, किसी फरिश्ते से तालीम हासिल नहीं की, बल्कि खालिक अकबर की बारगाह से आलिम बन के आया है। रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि जो किताब व हिकमत की तालीम देने आ रहा है वो जमाने में किसी का शागिर्द नहीं है। ये मानी था। और मेरे नबी ने इसी कुरान की आयत अरबों के आगे रखी और कहा, इसका जवाब अय्याम अरब किताब से मैं खास बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, मुख्तसर पैगाम और जवाब देना चाह रहा हूँ, लेकिन अब बात आ गई, ये करूंगा जरूर। अय्याम अरब से मैं एक वाक़या अर्ज करना चाह रहा हूँ। उस जमाने में मेरे नबी ने रखा इनके आगे कुरान, जो अरब के बड़े बड़े गुरु घंटाल थे, अरबी के माहिर, जो शायर थे, जो सुखनवर थे, जो खतीब थे, जो अपने अपने मज़ाहब के उलमा थे, जो राहब थे, उन्हें मेरे शहनशाह दो आलम इमामुल अंबिया ने कहा, भाई तुम कहते हो ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर लाओ इसका जवाब लाओ। तो अय्याम अरब से अब ये लफ्ज़ कहने लगा। तो उन्होंने हज के मौसम में
पूरे अरब से उलमा, शुआरा, दानिश्वर, सुखनवर, अदीब, खतीब बुलाए और कहा कि हमारे मजहब बर्बाद हो रहे हैं, हमारे दीन तबाह हो रहे हैं, इसका जवाब लाओ। तो उन तमाम शुअरा, खुतबा, सुखनवरों ने, उलमा ने, अपने मज़हब के उलमा ने 1 साल की मोहलत मांगी। अगले साल फिर हज के मौसम में, अक्कास के महीने में जलसा हुआ, हरमे काबा में हज के मौसम में जलसा हुआ। सब उन अरब के सुखनवरों, शुअरा, उलमा, खुतबा को बुलाए और बुला के उन्होंने कहा हाँ भी जवाब लाए। तो कुरान मुकद्दस में आ गया, ये मैं हाथ रख के कह रहा हूँ, अय्याम अरब में ये लफ्ज़ मौजूद हैं। सब ने कहा इसका जवाब है ही नहीं, तो हम कहाँ से ला सकते हैं। और उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि ये वाक़अतन बशर का कलाम नहीं है। और वो मशहूर बात है कि जब 3 आयात, इन्ना आतोइना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, जब ये सूरह कौसर 3 आयतें काबे के दीवार पे लटका दी थी कि इसका जवाब ला सकते हो तो लाओ। तो सब बड़े बड़े शुअरा ने जो कहते थे कि जी ये मोहम्मद की माज़अल्लाह शायरी है, उन्होंने लिख दिया कि ये बशर का कलाम नहीं है। तो वो जब जवाब दे दिया तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं। वो जो हज के मौसम में आए थे उन्होंने कहा ऐसे नहीं, कुछ तो कोई तजाद, कोई टकराव, इसमें से कुछ ना कुछ ऐसी बात ढूंढ के लाए जिससे हम इशू बना के सरकार दो आलम आपका नाम लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रख सके। तो उन्होंने फिर साल की मोहलत मांगी। साल के बाद फिर दूसरे साल आए। जब आए तो उन्होंने कहा तजाद है ही नहीं, हम कहाँ से ढूंढें, टकराव इसमें है ही नहीं, हम कहाँ से ढूंढें। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी ये जो बड़े बड़े खुतबा और सुखनवर, बड़े शायर बने फिरते हो, ये जितना पूरा वो पैनल था, अगर चाहे इसमें से आप कुछ ढूंढें ऐसा कि जिसे हम बेस बना के मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बात कर सके कि माज़अल्लाह तुम गलत हो और तुम्हारा ये कलाम गलत है कुछ। उन्होंने कहा हाँ ये है कि हम इसमें से कुछ ऐसा ढूंढें कि जो लफ्ज अब जमाने में राइज नहीं है और वो इस कलाम में राइज है। तो साल भर की मेहनत के बाद 2-3 लफ्ज कुरान से ढूंढ के लाए कि जी अब शय इस्तेमाल होता है और इसमें ला शय का लफ्ज है कुरान में, और एक जगह लफ्ज है कुब्बार, काफ बा बा हमजा रा, काफ बे बे अलिफ रा, कुब्बार बड़ा। तो ये लफ्ज जो है ये अब इस्तेमाल नहीं होते। यानी जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज में मीर तकी मीर जो शायर गुजरे और पुराने, तो वो कभी को कभू पढ़ते थे, तो कभू आज इस्तेमाल नहीं होता। और जैसे एक शेर है कि अभी टुक रोते रोते सो गया है, अभी टुक रोते रोते सो गया। तो ये टुक जो लफ्ज है वो आज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हम इसे गलत नहीं कह सकते। तो वो ढूंढ के लाए, तो ये 1-2 लफ्ज लाए कि ये आज अरबी लुगत में इस्तेमाल नहीं होते। उन्होंने कहा बस ठीक है, कुछ तो हासिल हुआ ना। तो हज का मौसम है, सरकार का खैमा लगा हुआ है, तो ये आए और पीछे जम्मे गरीब गफीर कि मुआज़ल्लाह आज तौहीन हो जाएगी सरकार की। और आज देखो कैसे अबू तालिब का भतीजा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, हाशिम की इज्जत, कुसा की शान, आली इब्राहिम औलाद इस्माइल मुआज़ल्लाह आज रुसवा होंगे। तो वो आए, जब आए तो कहने लगे मोहम्मद हम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। सरकार ने कहा जाओ किसी उम्र रसीदा, किसी चलो एक लफ्ज इंग्लिश का बोलता हूँ, सीनियर सिटीजन को बुला के लाओ, किसी बुजुर्ग को लेके आओ, उससे बात करूंगा। तो एक शख्स को लेके आए, ज़ैक उसका नाम है, 95 बरस का। जब वो आया तो उसने अपने अंदाज में सलाम किया, आपने उसकी बात का जवाब दिया, आप उठे नहीं बैठे रहे। फिर आप जब वो बैठ गया तो आप उठ के खड़े हुए, तो वो भी उठ के खड़ा हो गया।
फिर आप बैठ गए तो वो भी बैठ गए, फिर आप उठ के खड़े हुए कुछ कहने के लिए तो वो भी उठ के खड़ा हो गया, तो आप फिर बैठ गए। जब ये 3-4 मरतबा अमल किया तो उसने एक शेर पढ़ा, चूंकि वो उस जमाने का ज़ाइक बहुत बड़ा, या में से ढूंढ लीजिए कि उसकी क्या शख्सियत, क्या पर्सनैलिटी, वो इस छोटे से क्लिप में मैं नहीं इस बार मतलब तवालत में जाना चाह रहा। तो उसने एक शेर कहा जिसमें लफ्ज लाशै और कुब्बार भी इस्तेमाल किया। यानी आजकल कबीर, वो उनको मौक़िफ़ था कि कबीर इस्तेमाल होता है बड़े के लिए। जब उसने कहा कि तू मुझे कोई शायद नहीं समझ रहा और मैं बड़ा हूं, यानी लाशै और कुब्बार का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो सरकार ने मुस्कुरा के कहा जो लफ्ज तुम लाए थे वो तो ये आज के जमाने में भी बोल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सामईन मोहतरम, मुझे यही कहना है कि हमें बासियत मुसलमान, कैसा वो मुसलमान है जो कुरान से गलतियां तलाश करने की पे मेहनत कर रहा है, और कैसा है वो नबी का कलमा को जो नबी की जिंदगी से ये साबित करना चाह रहा है कि उनके पास इल्म नहीं था और वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और कलम इसलिए नहीं उठाया था कि अगर पहले से लिखते होते तो उस दौर के मुफ्ती तारक, उस दौर के मुफ्ती तारक कह देते कि सरकार के बारे में आपका नाम लेके कि जी पहले भी तो मोहम्मद लिखता रहा है, तो ये इसी ने कुरान लिख दिया होगा। सरकार ने कलम ही नहीं उठाया कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम ही रहे, मैं कलम ही नहीं उठाता। तो अजीजान मोहतरम, साथ ये भी फरमा दिया कि आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो जो दरवाजे से नहीं आते, फिर देख रहे आप सोशल मीडिया पे, फिर उन्हीं पर लानते पड़ती है, क्योंकि वो इल्म दरवाजे से नहीं उन्होंने लिया होता, चोर दरवाजों से लिया होता है। इसलिए अब्दुल्लाह ये कह रहा है, आओ आज भी मदीनतुल इल्म के बाग पे आओ, तुम्हें फिर समझ आएगी कि नबी कितना पढ़ना जानते थे, कितना लिखना जानते थे। तुम्हें बताया जाएगा नून वल कलम, कि नून कौन है, कलम कौन है, फिर तुम्हें बताया जाएगा। तो आखिर में ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, और जो अहले कानून है, जो अदारे हैं, उन्हें मैं गुजारिश करूंगा, पुलिस के अदारे हैं, दीगर अदारे, उन्हें गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपना माफीनामा सोशल मीडिया पे पेश कर दिया कि जी मैं माफी चाहता हूं अगर किसी की दिल आजारी हुई है, और मेरे ऐसी हरगिज़ ऐसी नीयत नहीं थी। एक तो वो अभी तक ये नहीं मान रहा कि मैंने गलत कहा, ये नहीं वो कह रहा, वो कह रहा जी किसी की दिल आजारी हुई है तो माफी चाहता हूं। और तुमने 8 करोड़, तुमने 8 अरब मुसलमानों के दिल दुखाए हैं, जिन्नो बशर के मलाइका के दिल दुखाए हैं, तुमने खुदा को तकलीफ पहुंचाई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं पाकिस्तान के अदारों से कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दीगर हमारे अदारे, पुलिस, जो भी इस जुर्म से मुतल्लक, उन्हें ये कहना चाह रहा हूं, आज अगर आपने एक छोटे से मुआफी के बयान पर इस केस को खत्म कर दिया और इस मामले को छोड़ दिया, तो कल कोई भी जितनी मर्जी गुस्ताखी करके मुफ्ती तारक का हवाला दे सकता है।